कुछ देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो ताकि हमारा फोकस अच्छे से बना रहे। आवाज आ रही सबको? हम ऑडिबल टू एवरी? हाँ, अभी ठीक है। चलो, नाउ यू कैन सी क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड आ रहा है, राइट? So let us have a look over the questions. What are the area of allowed region in Ramachandran map will be least for? Alright, which one is the least allowed region for the which amino acid? Ramachandran was studying the peptide bond actually, and then he came to know about the various kind of rotation of amino acids. Then he developed this plot called the Ramachandran map. So, any guess? For proline? Least for. Because heavy steric hindrance, na? So this will be the least for proline. Okay, so a protein has a 30% alanine, and if all the alanine are replaced by glycines, so alanine property you should know. You should study all the feature of the amino acids. There are different type of amino acids. Each one have their own size and shape. And in a protein where alanine is there, and at least 30% alanine is there, and you are replacing it with the glycine, then what may happen? Helical content will increase, beta sheet content will increase. There will be no change in conformation. The alanine substituted protein will be less structured than parent protein. What is the possibility? जब पढ़ लेंगे फिर गेस करेंगे इसको. Peptide bond is planar due to. Why peptide bond is planar? Restriction around C alpha C, restriction around C N bond, restriction around N C alpha bond, or hydrogen bonding between carbonyl, oxygen, and iminohydrogen of peptide. That's back to the repeated. Sir, CN, restriction around CN bond. क्यों? प्लेनर पूछ रहा है. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेगा ये देखना पड़ेगा. क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो होता है ना, प्लेनर बनाएगा. Which is the following most appropriate statement regarding folded proteins? Folded protein के लिए कौन सा most appropriate statement है? Charged amino acid side chain are always buried. Charged amino acid side chains are seldom buried. Non-polar amino acid side chains are seldom buried. Tyrosine residues are always buried. कौन सा सही होगा? So non-polar amino acid side chain are seldom buried. No. Non-polar amino acid side chain are often buried, not seldom buried. पूछ रहा है which is the most appropriate statement. तो seldom मतलब कभी कभी. often मतलब हमेशा. just think and चलो बाद में देखेंगे. इन एन अल्फा वो पढ़ाया हुआ था चैप्टर को जो बरीड वाला था. इन एन अल्फा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड द बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर बिटवीन NH of N and CO of N plus 4 amino acid, CO of N and NH of N plus 3 amino acid, CO of N and NH of N plus 4 amino acid, NH of N, CO of N plus 3 amino acid. Which one may be correct? अब ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा. अभी एडवांस क्वेश्चन दिखाता हूँ. अभी तो नोजी कोजी पे आ गए हैं. आप ट्रेंड समझा करो. ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड ये होता है कि पहले आज से 5 साल पहले कैसे क्वेश्चन पूछते थे, अभी 2 साल में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है. 2 सालों का ट्रेंड देखोगे तो बिल्कुल मतलब तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं होगा कि तुम एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का है.
ये सब तो बेसिक पैरामीटर्स हैं, बेसिक क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे जैसे 10 साल पहले, 5 साल पहले। लेकिन अब अगर ये भी नहीं सॉल्व कर पाओगे तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। चलो, वेरी गुड। Following are the 3 single stranded DNA sequences that form the secondary structure। एक secondary structure बनाते हैं, इसका तो मेरे ख्याल से जवाब दे लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का भी पढ़ेंगे, डीएनए का तो चल ही रहा है। जस्ट हैव अ लुक। समझ में आया? क्लियर हो रहा? Based on the solution, which one is correct? P equal to R, R greater than P greater than Q, Q greater than R is equal to P, Q greater than R greater than P. क्या बोलोगे? What else? No idea? Check. Next. Screen से any guess which is the characteristic of both an alpha helix and beta sheet? ये आंसर दिया हुआ है। both can be anti-parallel structure, ये हो नहीं सकता। both form interaction involving the oxygens of peptide bonds, और ये भी नहीं सकता। both are formed only with the multimeric proteins, both are denatured when it gets peptide bonds। so बहुत ही फोकस्ड होकर स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर विल बी मिसिंग, है ना? ठीक है, क्लियर हो रहा है? so secondary structure is defined by which forces? क्या बोलोगे? आवाज आ रही सबको? हेलो, आवाज आ रही बेटे? मेरी आवाज आ रही सबको? अप्रेम, मनीषा कुछ बोलो। नवीन? Yes, sir. Secondary structure is defined by So hydrogen bond. any other guess? मनीषा, नवीन, इसका आंसर क्या होगा? Which of the following is false? Alpha keratin is alpha helical, collagen is alpha helical, hemoglobin has a quaternary structure, and alpha keratin काफी मतलब पढ़ाई की जरूरत है। अच्छा चलो ये बताओ, ये आंसर दिया हुआ when myoglobin is denatured using need, what will change? Amino acid composition will change, its amino acid sequence will change, its tertiary structure will change, its C terminal will change। क्या चेंज होगा इसमें? तो इसका tertiary structure will change। When hemoglobin is treated with urea and beta marker ethanol, ये क्वेश्चन आ चुका है इस शहर में। So what will not change? So molecular weight will be unchanged, quaternary structure will be unchanged, conformation will be unchanged, its primary structure will be unchanged, just everything will be changed। ये क्वेश्चन CSIR को पूछा हुआ है, इसको अभी हम पढ़ा। So I think it's clear। An alpha, am I audible to all of you? ये आवाज आ रही बेटे properly?
कौन चला गया? Yes, sir. नेटवर्क का इशू आ रहा है इसको। अच्छा, an alpha helix in a peptide or protein is characterized by hydrogen bond and characteristic diagonal angle. Which will be the right combination? Which will be the right combination? Hydrogen bonding between the amide C of residue. नेटवर्क चला गया? अच्छा, okay. So what you will say? Hydrogen bonding between the amide C of residue and amide NH of residue plus 4 diagonal angle in the region minus 50 degree minus 65 side 50 60 सब में 50 60 दिया हुआ है ना, सब में 50 60 दिया हुआ है। क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ए में देखो माइनस माइनस है ना, 50 60। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अपनी? Yes, sir. सो अगर आप देखो तो क्या डिफरेंस है? अगर ए में देखो तो आप इसमें -50 -65 है ना, बी में भी -50 -60 है, सी में देखोगे डिफरेंट है, -50 +60, और डी में देखोगे अगेन -50 -60। इसके आधार पे सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप देखो CO रेजिड्यू आई एंड एमाइड NH ऑफ I+4, क्या ये सही है या इसका अपोजिट सही है? मतलब कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल पूछ रहा है, क्या बोलोगे? यहाँ भी CO ऑफ I, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, तो C और A बिल्कुल एक जैसे हैं, बस खाली चार्ज का डिफरेंस है, इधर -60 इधर +60। तो इन अल्फा हेलिक्स इन पेप्टाइड और प्रोटीन कैप्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक डायहेड्रल एंगल्स, चूज द राइट कॉम्बिनेशंस। इसका ऑप्शन है ए, ठीक है ना। हमेशा CO कंबाइन करता है NH से I+4 के डिफरेंस पर, और एंगल होता है फाई और साई का दोनों का नेगेटिव। मैं अभी बताऊंगा नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है। हम देखो CD से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, बट अभी इतना एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं। अमीनो एसिड एलानिन हैज हाई propensity to occur in helical conformation, right? मतलब अल्फा हेलिक्स बनाने की ज्यादा चांसेस है एलानिन के। CD ऑफ इक्विमोलर CD एक टेक्निक होती है सल्फर डाइक्लोरिज्म, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है तो अल्फा बन रहा है कि बीटा बन रहा है, या D है कि L है, बहुत सारा पता लगा सकते हैं। One composed of only L alanine and other only of D alanine, ये रिकॉर्ड किया गया 185 to 250 नैनोमीटर पे। कह रहे हैं कि which one of the following will be observed, तो ये आपने पढ़ा ही नहीं है तो इसके बारे में आपको आइडिया नहीं, पढ़ाऊंगा इसको। तो आजकल एंगल भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एसिटाइल एलानिन 18, अगर आप ये देखोगे रिसर्च पेपर में काफी ये पॉपुलर हुआ था ये मॉलिक्यूल। C1H2 exist in alpha helical conformation in solution, कहते हैं अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन होता है इसके सॉल्यूशन में। मोस्ट ऑफ द बैकबोन डायहेड्रल एंगल विल बी, क्या होगा इसको कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन? तो रामचंद्रन प्लॉट तो पढ़ना पड़ेगा। रामचंद्रन प्लॉट के पहले वी शुड नो अबाउट द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? एवरी अमाइनो एसिड, एवरी असेंबल प्रोटीन इज मेड अप ऑफ प्राइमरी अमाइनो एसिड, राइट? एवरी असेंबल यूनिट्स आर मेड अप ऑफ primary structure, then folded by hydrogen bond. With the help of hydrogen bond, they are forming the alpha or beta. Now, various alpha and beta are going to form tertiary structure, right? So, tertiary structure is the overall folding between the different secondary structure.
and the secondary structure is local folding, either intrachain or interchain. Intrachain समझते हो ना? इंट्राचेन मतलब सेल्फ, जैसे अल्फा हेलिक्स। बीटा चेन दो सीट होती है, सीट लाइक स्ट्रक्चर, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पैरेलल या एंटीपैरेलल। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में देखोगे दिस इज अ मल्टी चेन एसोसिएशन। कभी कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक प्रोटीन क्या है, व्हाट इज फाइनल प्रोटीन, व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मल्टी चेन एसोसिएशन। इतना क्लियर हो गया? एनी डाउट? सो नाउ अब अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अल्फा बीटा पे नहीं पूछे गए हैं, वो किस पे पूछे गए हैं? गेस करो। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स पे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। एंड आप अगर देखोगे तो ज्यादातर जो टफ स्ट्रक्चर है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट स्ट्रेंथ, व्हाट इज द रीजन? इसको काफी स्टडी करते हैं। ट्रिपल हेलिक्स आपका चाहे प्रोटीन का हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, चाहे डीएनए का हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। होगस्टीन बेस पेयर आपने नाम सुना होगा, होगस्टीन बेस पेयर का नाम सुना है? होगस्टीन बेस पेयर। इसके बाद नेक्स्ट वही लेक्चर है जहाँ पे भी ट्रिपल हेलिक्स टीएच डीएनए बनता है। प्रोटीन में भी ट्रिपल हेलिक्स है, जिसका बोलते हैं कोलेजन ट्रिपल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 5 इयर्स में एटलीस्ट मोर देन 20 क्वेश्चन इसी से आ चुके हैं, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स से। ठीक है, तो बहुत सारे पहले ये पूछे जाते थे अल्फा बीटा से। वो अगर आप देखोगे तो पाथफाइंडर में बेसिक चीजें ज्यादा दी हुई है जो पहले पूछे जाते थे, अब वो आउटडेटेड हो गया। तो अब जो बच्चे पढ़ते हैं वो, उनका फ्यूचर तो हमें नहीं पता है, लेकिन सेलेक्ट कर नहीं होते, ये तो है। अल्फा बीटा में अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। हेलिक्स फॉर्मेशन, क्रॉस लिंक फॉर्मेशन बाय डेंसिटी, कोई भी बता देगा बच्चा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते। हाँ, ये कभी कभी पूछते हैं कि वाई हेयर इज टफ, हेयर इज टफ बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड। लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन आया था कि जो औरतें या फीमेल्स स्ट्रेट हेयर करती हैं तो क्या रीजन है? डाइसल्फाइड तो वहां होता है, वो कर्ली रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये स्ट्रेट क्यों हो जाता है? व्हाट इज द रीजन? कैन यू टेल मी? स्ट्रेट हेयर देखा है आपने? मशीन भी आने लगी है काफी पार्लर में, है ना, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। आवाज परफेक्ट आ रही है? यस सर। तो स्ट्रेट हेयर का क्या रीजन है? चलो कल का होमवर्क है, आप हमें बताना, सर्च कर, है ना। तो ऑल दिस स्ट्रक्चर, हेयर, नेल, फीदर्स, ऑल दिस मेड अप ऑफ अल्फा कैरोटीन। now ये क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट दे आर मेड अप ऑफ बीटा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन और इसको टफ बना देता है। जैसे आप देखो सिल्क फाइब्रोइन, ये टोटली बना है बीटा। बुलेट प्रूफ जैकेट आजकल जो बना रहे हैं वो इससे बना रहे हैं, सिंथेटिक बीटा फिलामेंट से, राइट। तो अब कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स क्या है? क्या इसमें अल्फा है? हेलिक्स वर्ड दिया है तो अल्फा ही होगा। तो क्या तीनों अल्फा है? 3 अल्फा कह सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं 3D10। तो क्या ऐसे स्ट्रक्चर में फीचर है जिसकी वजह से दे आर वेरी टफ? कोलेजन ऑफ टेंडन्स, बोन, ये भी एक रीजन। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक से। आर यू रेडी? सब लोग रेडी हो पढ़ने के लिए? यस सर। हाँ, थोड़ा सा आवाज देके बोलो सब लोग, इससे ना कॉन्फिडेंस का पता लगता है। तो प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड, आपको पता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। कितने तरह के? 2 तरह के। कोवेलेंट, कोवेलेंट में एज यू नो पेप्टाइड बॉन्ड 1, नोट करते रहो। सेकंड लिखोगे फिर मजा आएगा। यस सर। सेकंड डाइसल्फाइड। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप देखोगे तो दीज आर 4 टाइप। तो मैं देख रहा था यहाँ पे जैसे एक मिसिंग है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वंडरवॉल, हाइड्रोफोबिक। ये क्या मिसिंग है बता सकते हो आप? इसमें कौन सा बॉन्ड जो मिसिंग है? सर आयनिक बॉन्ड अच्छा है। चार्ट प्लीज।
हाँ ये सर साइंटिफिक में पढ़ाया था ना लास्ट टाइम। हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे तो कितने हो गए टोटल? काउंट करो। काउंटिंग आजकल पूछ दे रहा है। ट्रू सेंटेंस, ट्रू फॉल्स में कई पॉइंट्स देते हैं। 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को जब आप सीक्वेंसिंग करते हो, ये किस केमिकल से ब्रेक होता है? Which chemical is used to break this disulfide bond? Any idea? Which chemical is used to break disulfide bond? किसको बोलोगे बेटा? कौन से केमिकल है? सर एसडीएस एसडीएस से डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटेगा, ये किसने कहा? अरे सर वो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल सॉरी हाँ, यूरिया से क्या टूटेगा? बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, तो एसएच बॉन्ड टूटेगा डाइसल्फाइड। यूरिया क्यों यूज करते हैं? बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो यूरिया यूज कर सकते हो। यूरिया क्या है? साल्ट है ना, साल्ट है। साल्ट आप यूज करोगे तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कैसे पड़ेगा? ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड। So the disulfide bond is formed by 2 SH group, that is found in the cysteine. You can see, and these are the formation of this interchain disulfide bond is because of oxidants. If you are using the reductants, again you can see the bond is breakage and the resultant in the formation of again 2 cysteine molecules. So this question was asked in CSA. One disulfide for formation of, note kar lo, for formation of one disulfide bond, how much cysteine is required? How much cysteine required? You can write down so the 2 answer. This is 2. And the process is oxidation. Process is not oxidation. This is reduction. As a result of reduction, you can see there is a formation of 2 सर cysteine. रिडक्शन हो रहा है एसएच एसएच से एसएस हो रहा है हाँ, ये ध्यान देना है कि क्या होगा। ऑक्सीडेंस होगा तो डाइसल्फाइड बनेगा इंटरचेन, एंड देन फिर सी कि अगर ये रिडक्टेंट यूज करते हैं, जैसे बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज किया था, तो आपका ये है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है? सपोज ग्लाइसिन एलानाइन, ये 2 अमीनो एसिड मिल गया, तो कब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? When there will be removal of water. When there is a removal of water between 2 amino acids, there will be formation of peptide bond. अभी सब बेसिक पढ़ा दूँ, ठीक है। So what are the different non-covalent bond? So you can see this is the ionic bond between the charged molecule. Hydrogen bond is possible between the strong electronegative group, oxygen. Right? ये इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है। वैन डर वाल अट्रैक्शन कब होता है? Can you tell? वैन डर वाल अट्रैक्शंस कब होते हैं? Depends on radii of atom. Radii of atom decides van der Waals repulsion और van der Waals attraction. एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपका जो रामाचंद्रन, जीएन रामाचंद्रन का प्लॉट वो इसी बॉन्ड को डिस्कस करता है। दे आर talking about the various possibility of movement of amino acids around the bond. Okay, so they are talking about various possibility, बहुत सारे possibility की बात करते हैं। And then you can see hydrophobic, obviously between the non-polar amino acids, right? Non-polar amino acid, non-polar amino acid. And they are buried, यही क्वेश्चन में पूछा था। They are buried inside कौन? नॉन पोलर, और जो पोलर है they are on the surface। देखा कितने अच्छे से पूछते हैं से on the surface, and they are responsible for mostly formation of hydrogen bond, and inner वाला बनाएगा mostly hydrophobic interaction। Okay,
So primary structure already you know, the linear sequence of amino acid. सर प्रीवियस वाला स्लाइड एक बार फिर से दिखा. सर अंदर की तरफ वंडरवॉल्स एंड हाइड्रोफोबिक है. हाँ, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक है, बाहर की तरफ हाइड्रोजन वॉल, अंदर की तरफ वंडरवॉल, आयनिक बॉन्ड सरफेस पे. ठीक है, तो ये अंदर बाहर का थोड़ा देखना पड़ेगा. प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग particular function of protein, and they are dictated by the genes. Genetic disease is caused by abnormal amino acids. So which bond occurs in the primary structure? Only covalent bond. And there are two covalent bonds. One is peptide and second is the disulfide bond. So how peptide bond is going to form, right? तो अगर दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? एक पेप्टाइड, राइट? टू अमीनो एसिड लिंक फॉर्म वन पेप्टाइड, लेकिन इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड फॉर्मेशन. ठीक है, तो ट्राइपेप्टाइड में कितने बॉन्ड होंगे? डाइपेप्टाइड में तो एक, ट्राइपेप्टाइड में दो. ऐसे याद करना है. 50 पेप्टाइड में कितने होंगे? 49. ठीक है ना? तो प्रोटीन किसको बोलोगे? लेस देन 50 अमीनो एसिड पेप्टाइड, ग्रेटर देन 50 अमीनो एसिड प्रोटीन्स. ठीक है, एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? तो एज ए हाइड्रोलिसिस टू अमीनो ग्रुप इज कंबाइनिंग, तो कार्बोक्सिल ऑफ 1, ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिल ऑफ 1, दिस इज कॉल्ड द अल्फा, एंड अमाइन ग्रुप ऑफ two hydrogen of amino group of other amino acid. तो amino acid 1 जो होगा वो हमेशा C होगा, C1 and N2, ये याद रखना. C1 से स्टार्ट होगा, यानी amino acid 1 जो होगा हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप इसका इन्वॉल्व होगा, और जो सेकेंड अमीनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा. एज अ रिजल्ट देयर विल बी CO NH. अब ये तुम्हें स्ट्रक्चर में बोलना नहीं है. CO, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. दिस इज नॉट द फिक्स्ड स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर रेजोनेट करता है. रेजोनेट मतलब पता है ना? यस सर. मूव करेगा, वो मूव करता है, शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन. कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ. This is called the resonating structure. पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो क्वालिफाई भी होगा और निकलेगा भी. पेशेंस नहीं होगा, अगर टिकटॉक वीडियो देखना है सीएसआर के लिए तो मेरे पास आ रखा है टिकटॉक वीडियो. इसका तो लॉन्ग वीडियो होता है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है. लाइव क्लास पूरा डिस्कशन करते हैं, अच्छे से जूस निकाल लेते हैं पूरे सब्जेक्ट का, चैप्टर का. तो व्हाट इज द नेम ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड? इसका नाम बताओ. एन से पढ़ोगे या सी से पढ़ोगे? मतलब ये क्वेश्चन है. जैसे ये है एनेस्थेटिक, ग्लूटामेट, सिस्टीन, मेथिओनिन, ग्लाइसिन, CO. ठीक है, तो क्या नाम दोगे इसका? एन टर्मिनल ग्लूटामेट, सिस्टीन, सिस, मेट, ग्लाइसिन. ग्लूटामेट, सिस्टीन, मेथिओनिन, ग्लाइसिन. तो अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑलवेज फ्रॉम एन टर्मिनल, हमेशा एन टर्मिनल से पढ़ोगे. ठीक है ना, हमेशा एन टर्मिनल से. ज्वाइन करोगे पेप्टाइड में तो सी टर्मिनल से, लेकिन जब पढ़ोगे तो एन टर्मिनल से. ठीक है ना, पहले अमीनो एसिड में तो सी टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व था इसलिए. ठीक है ना, लेकिन वो कार्बोक्सिल ग्रुप तो इन्वॉल्व हो गए तो वो एन टर्मिनल हुआ ना. याद आया? अमीनो एसिड A1 का COOH इन्वॉल्व था, प्लस A2 का कौन सा इन्वॉल्व था? NH2. इसका फ्री कौन सा हुआ? NH2. इसका फ्री कौन सा हुआ? COH. तो N टर्मिनल से तो पढ़ोगे A1 से A2.
ठीक तो है, A1 से A2 protein synthesis occur in the same way, right? So M terminal amino acid always named as IL, C terminal को क्या कहेंगे, आइन, इसीलिए यहाँ पे मिल, नील, नील, आइन, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड के फीचर, रामाचंद्रन को यही चीज बड़ी फैसिनेटिंग लगी थी और मुझे भी बड़ी फैसिनेटिंग लगी कि रामाचंद्रन कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी डिस्कवर कर लिया इस चीज को। तो कैसे, इनका ध्यान इस पे गया कि दिस इज अ नॉट डबल बॉन्ड, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, दिस इज रादर देन प्लेनर एंड हैविंग द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड में क्या अंतर है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा शॉर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी ना, शॉर्ट होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होगा, 1.32 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब ये सिंगल बॉन्ड देखो और लंबा होगा 1.49, इन दोनों के बीच में आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड। सो दे आर ऑलवेज इन ट्रांस कॉन्फिगरेशन, इस कॉन्फिगरेशन में सिस में नहीं, ऑलवेज दे आर इन द ट्रांस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। यस सर। सो साइड चेन्स के बारे में इन्होंने बात करना शुरू किया कि अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो व्हाट विल द फेट ऑफ साइड चेन, साइड चेन आर फ्री टू रोटेट, वो फ्री है रोटेट करने के लिए। और जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, फाई और साई में, इसको कहा गया रामचंद्रन एंगल। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, आते हैं उसके लिए। Primary structure, high level of organization of protein dependent on the primary structure. For example, sickle cell anemia. अगर इसमें चेंज कर देते हो, अगर आप इसमें चेंज कर देते, इवन if you are going to change single amino acid, है ना, तो आप देख सकते हो कि because of disturbance in the primary structure, a person is going to have the sickle cell anemia. इसके बारे में क्वेश्चन CSIR में आते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड चेंज होता है और किस फॉर्म में चेंज होता है। 6 amino acid in the beta chain, beta chain है, not alpha. 6th amino acid in the beta chain is glutamic acid, which is going to change valine in the HBs. HBs किसको बोलते हैं, जब सिकल सेल हो जाता है, सिकल सेल नहीं हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं HBA, glutamic acid, इसमें परफेक्ट है। पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो they are going to change into the HBs। तो फर्क क्या आता है, फर्क इसमें ये आता है कि सिकल सेप हो जाता है, सिकल सेप होने से प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाता है, बेसिक इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा अगर आप देखोगे तो डायबिटीज बड़ा फेमस डिजीज है, एंड ये कहा जाता है कि 80% द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज affected by this diabetes। कोरोना ने तो उन्होंने फर्क किया, लेकिन कोरोना की वजह से आज मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगर आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, अभी नेचर में ये पब्लिश हुआ है, जिसको चाहिए उसमें मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं अभी भी शेयर कर सकता हूँ। दैट दे डिस्कवर्ड दैट कि पेंक्रियाज को जाके वायरस पूरी तरीके से डैमेज कर देता है काफी लोगों में, तो ये डायबिटिक हो जाता है। तो ह्यूमन इंसुलिन बना कैसे, ये क्वेश्चन इस पर से में आता है। देयर आर ए चेन एंड बी चेन, दो चेन है, ए चेन की लेंथ है 21, बी चेन की लेंथ है 30, टोटल कितना हो गया 51 अमाइनो एसिड, राइट। और दे आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये भी पूछा हुआ है, देयर आर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड, देयर आर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो एक्टिव इंसुलिन बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का एक्चुअल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो देयर इज नॉट 51 अमाइनो एसिड, देयर इज 86 अमाइनो एसिड, राइट। यहाँ पे 86 कैसे हुआ, 33 वाला ऐसा है ना, और ये सी पेप्टाइड 33 एग्जैक्टली है ना, इसमें चेंज आता है। तो ये प्रो इंसुलिन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एक्टिव
इंसुलिन। ये वाला देखोगे, ये वाला रेड वाला, तो ये इसकी लंबाई को थोड़ा बढ़ा देता है, इसी को कहते हैं सी पेप्टाइड। ये कट कर दिए, तो ये कट करके फिर ये एक्चुअल में इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन बनता है। तो ज्यादातर वायरस क्या करते हैं कि इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, डाइसिबल ब्रेक कर दिया या एक्टिव इंसुलिन के और पार्ट को ब्रेक कर दिया, तो दैट इज प्रॉब्लम। तो आप देखोगे कि देयर इज ए 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसकी बात कर रहे थे, 2 1 and 2, ये क्या है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और एक जो है कौन सा बॉन्ड है, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये छोड़ो डाइसल्फाइड बॉन्ड में इसके लिए। फिर इससे सभी क्वेश्चन आता है, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट 13 यूनिट 12 यूनिट सब जगह ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि यहीं पे मैक्सिमम चीजें कवर कर देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कैसे करोगे, तो बहुत सारे मेथड है डिटरमाइनिंग amino acid composition in a protein, so you can adopt Cron's enzyme or chromatographic technique, degradation of protein into a smaller fragment. This is another method where you can use the urea or guanidine HCl. This will liberate the polypeptide. Dense chloride अगर use करते हो तो you can determine the number of polypeptide chain. सर इसमें जो guanidine वाला यही पूछ रहे थे, degradation of protein into smaller fragment, guanidine। हाँ, guanidine HCl, हाँ इसका इंपॉर्टेंट यही है, लिबरेशन ऑफ पल्प। यूरिया का ज्यादातर CSIR में पूछा होगा, अभी तक guanidine HCl का नहीं पूछा है, इसलिए इसको मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करता हूँ। नोट करते चलो साथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर स्लाइड देखने से नहीं आएगा, लिखना भी पड़ेगा, नोट्स बनाते चलो, बहुत ही धीमी स्पीड है, जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, राइट। इसीलिए कि नॉलेज सेम टाइम, जो टाइम स्पेंड कर रहे हो आपके ब्रेन में भी चला जाए, और अगर कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो डिस्कस करिए, ठीक है। लाइफ का मतलब ये, यूट्यूब बना के मैं भी पोस्ट कर सकता था, फिर वो ऐसे हो जाता कि जैसे अनकुक्ड राइस, मतलब देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे शायद क्वालिफाई अगर होता तो फिर लोग बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं ज्वाइन करते, महंगी महंगी कोचिंग, तो वहाँ नॉलेज दी नहीं जाती है, वहाँ एडवर्टीजमेंट के लिए यूट्यूब बनाए जाते हैं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, कोई गारंटी नहीं मिलता कि आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी ट्यूटोरियल्स में आप जाते हो या स्टूडेंट जाते हैं, तो वहाँ पे गारंटी होती है कि चांसेस हाई हो जाते हैं निकलने का, क्योंकि वहाँ पे काफी क्वालिटी के प्रोफेशन टीचिंग होती है। तो जैसे क्लोराइड का अगर आप यूज करते हो तो ये एग्जैक्टली पूछा हुआ है, यूरिया यूज करोगे तो क्या होगा, डेंसिल क्लोराइड यूज करोगे तो यू कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। 2 पॉलीपेप्टाइड है, एक है, बी है, सी है, डी, 4 चेन है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में कितने हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो अगर इनमें ये डिटरमाइन करना है तो कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी, क्या बोलोगे, बोलो, डेंसिल क्लोराइड, क्या बोलोगे, डेंसिल क्लोराइड, ठीक है। एंड ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू फ्रैगमेंट्स, एंजाइमेटिक क्लीवेज, केमिकल क्लीवेज, एंड डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, सैंगर रीजन, एडमॉन रीजन। तो इसका डिटेल हम बाद में पढ़ाएंगे, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो 1 by 1 देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन करना है तो यू कैन यूज द नॉन स्पेसिफिक प्रोटीनलिटिक एंजाइम दैट कॉजेस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज द प्रोनीज। इनको प्रोनीज बोलते हैं। प्रोनीज क्या करता है, एक तो नॉन स्पेसिफिक है तो कहीं स्पेसिफिकली अटैक नहीं करेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेगा प्रोटीन को। सेपरेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसको क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से अलग कर सकते हो एंड ट्रेस कर सकते हो बाय द यूज ऑफ इनहाइड्रिन। गुआनिडीन HCl की बात करोगे तो दे आर, तो प्रोनेज जो है वो कहीं पे भी एक, हाँ, नॉन स्पेसिफिक है, हाँ नॉन स्पेसिफिक है। गुआनिडीन HCl की बात करोगे, दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड
and dissociate the protein into polypeptides. और ज्यादा बेहतर अगर आपको देखना है तो यू कैन डाइसल्फाइड परफॉर्मिक एसिड अगर यूज करते हो तो यू कैन ब्रेक द डाइसल्फाइड पॉलीपेप्टाइड इज नाउ ब्रोकन, है ना। तो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड को स्पेसिफिकली ब्रेक करने के लिए यूरिया ये इंपॉर्टेंट होगा। कोवैलेंट बॉन्ड को नहीं ब्रेक करेगा, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड को गुआनिडीन HCl ब्रेक करेगा। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड disulfide bond performing acid. Number of polypeptide, dancing chloride, 1-dimethylamine, naphthalene, 5-sulfonic chloride, right? तो dancing chloride अभी बताया था, अगर आपको पता करना होगी कितना पॉलीपेप्टाइड है तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ डेंसिल अमीनो एसिड नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जितना डेंसिल अमीनो एसिड बनेगा उतना पॉलीपेप्टाइड चेन आपके प्रोटीन में प्रेजेंट है। क्लियर? ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू फ्रैगमेंट्स एंजाइमेटिक क्लीवेज कर सकते हो एंड दे आर स्पेसिफिक क्लीवेज, केमिकल क्लीवेज। साइनोजन ब्रोमाइड कॉमनली यूज्ड, साइनोजन ब्रोमाइड काफी सीजन में पूछा हुआ है एंड दे अटैक कार्बोनिल साइट कंट्रीब्यूटेड बाय मैथिलीन। जहां पे मैथिलीन अमीनो एसिड होगा स्पेसिफिकली वहां पे अटैक करेंगे। Internal amino acid identified by trypsin commonly used, lysine arginine, chymotrypsin, phenylalanine tyrosine tryptophan leucine. C-terminal amino acid identified by carboxypeptidase A, acidic neutral amino acid को identify करना है तो carboxypeptidase A, proline को identify करना है carboxypeptidase B. Determination of amino acid sequence, Sanger agent 1-fluoro-2,4-dinitro benzene, FDNB, 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene. FDNB specifically bind with N-terminal amino acid to form DNP derivative of peptide. Right? ठीक है? FDNP specifically bind with N-terminal amino acid to form DNP derivative of peptide. This is unhydrolyzed DNP amino acid and free amino acid from rest of the polypeptide. And DNP is used for identification of N-terminal amino acid. DNP amino acid divided by tomato. Edmond reagents आपको पता ही होगा काफी पॉपुलर है। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, they react with N-terminal amino acid of peptide to form phenyl thiocarbonyl derivative PTH and phenyl thiodenotoin PTH amino acid degraded antified chromatography, and then Edmond reagent would react with second amino acid which now has the alpha amino group and useful in sequencing first 30-30 amino acid. The level first A leads up first amino acid, then level second amino acid leads up second amino acid. So this is the Sanger reagents. Sanger reagents किसको बोलेंगे? When we are using the 2-DNP dinitrophenyl derivative of polypeptide plus 6 number HCl. क्योंकि डेरिवेटिव बन जाता है 2,4-dinitrophenol का and then 3 amino acid. तो identify amino terminal ratio of polypeptide, right? Amino terminal determine करने के लिए Sanger's and then Edmond degradation sequence by sequence, phenyl isothiocyanate, PTC adapt, and then release of entire sequence of peptide. तो मेरे ख्याल से आज कोई है नहीं तो बस इतने पर रोक देते हैं। Sequenator, automated machine to determine amino acid sequencing polypeptide based on the principle of Edmond degradation. Amino acid are determined sequentially from N-terminal end, PTH amino acid degraded is identified by SPLC, and sequenator takes place about 2 hours for each amino acid. Second new technique आई हुई है reverse sequencing technique, which is the genetic material DNA which ultimately determines sequence of amino acid in a polypeptide chain by analyzing the nucleotide sequence of DNA that code for protein. It is possible to translate nucleotide sequence into amino acid sequence. What is the team merit? इसमें करते क्या है? DNA का हेल्प लेते हैं और क्योंकि DNA रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए तो
एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या ट्रांसलेशन हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ये रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो कल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट, द कंपोजिशन, टाइप बॉन्ड and super secondary structure, and then really we'll know about the structure of hair, nail, keratin, है ना, और इनका real composition की how they are twisted, how they are combining, which amines are there, right, and how they can be strong. And इसके बाद we'll start the Ramachandran plot. Okay, ठीक है? Any question? आज इतना तक करते हैं, है ना, गर्मी काफी है तो